اقبال مجید کا مجموعہ تماشا گھر میں شامل افسانہ بے شمار۔ مانو کا کمرہ بہت دنوں تک اسے ٹماٹر جیسا لگتا رہا۔ اس نے گھر والوں سے کئی بار خواہش ظاہر کی کہ کمرے کو اس اوزار کے درمیان رکھ دیا جائے جس سے ٹماٹر کے قتلے بن جاتے ہیں تو کمرے کے قتلے بھی بن جائیں گے۔ وہ ان قتلوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلے تو مانو کو سمجھایا گیا کہ ایسا کرنے میں مانو کے سارے سامان اور خود مانو کے بھی قتلے بن جائیں گے، لیکن جب اس پر بھی مانو اپنے کمرے کو بدلی ہوئی حالت میں دیکھنے کا اصرار کرتا رہا تو گھر کے لوگ فکر مند ہو گئے۔ مانو کی ذہنی دنیا میں ایسی کون سی اتھل پتھل ہو رہی تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے جس کرب سے اس کے گھر والے گزر رہے تھے، نہ تو مانو کو اس کا احساس تھا اور نہ اس بات کا اس پر کوئی بوجھ کہ لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسے اطمینان تھا کہ کسی دن اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ دراصل مانو کی طرح اس کے گھر والوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ مانو نے تعلیم کے زمانے میں ہمیشہ امتیازی حیثیت سے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 بار ڈبل پروموشن پا کر اس نے ایم اے بڑی کم عمری میں کیا۔ گولڈ میڈل پانے پر نہ اس کو حیرت ہوئی نہ اور دوسروں کو۔ مانو کو جب اس کے دوست سڑک کے کنارے پرانی کتابوں کے لگے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے پاتے تو یہ سمجھ جاتے کہ میتھمیٹکس کی کوئی کتاب اس کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ مزہ تو اس کے دوستوں کو تب آتا جب وہ کسی سوال کو سمجھنے کے لیے کاغذ پر لکھتے لکھتے اس کے آخری سرے تک پہنچ جاتا اور کاغذ پر جگہ نہ رہ جانے پر کاغذ کے نیچے رکھے تکیے کے سفید غلاف پر سوال کا باقی حصہ حل کرنے لگتا اور تکیہ غلاف کے ختم ہو جانے پر تکیے کے نیچے مانو کے دودھیا لٹھے کے پاجامے کی پھر باری آ جاتی اور مانو کا قلم پاجامے پر چلنا شروع ہو جاتا۔ ایک دن مانو صبح کا ناشتہ کر رہا تھا۔ ماں نے اسے دودھ اور دلیا دیا تھا۔ اس نے کٹورے میں چمچہ ڈالا ہی تھا کہ اسے لگا کہ کٹورے میں دودھ اور دلیے کے درمیان کوئی گھوڑا آ کھڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر ایک مینا بیٹھی ہے۔ اس نے نہ تو اس بات کا کسی سے ذکر کیا اور نہ اصرار کہ کٹورے میں گھوڑا اور مینا ہے۔ اسے یقین تھا کہ جب کچھ ہے تبھی تو اسے دکھائی دے رہا ہے، اور اگر نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی دکھائی دے رہا ہے تو پھر یہ مانو کا قصور نہیں ہے، قصور تو اس شے کا ہے، یعنی وہ شے دکھائی دیتے وقت دکھی جانے والی جگہ پر خود وجود کیوں نہیں رکھتی۔ مانو نے پاس ہی رکھی خالی رکابی کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ رکابی کی صاف ستھرے سطح پر بارات کے باجے والے بھڑکیلے وردیاں پہنے باجا بجا رہے ہیں اور اچھلتے ناچتے باراتی جلوس کی شکل میں چل رہے ہیں۔ مانو کو ہمیشہ سے گاجے باجے اور شور شرابے سے نفرت تھی۔ غالباً اس کی ایسے گاجے باجے سے علیحدگی پسندی کی وجہ وہی تھی جو کسی کٹر ہندو کو مسلمان سے یا کٹر مسلمان کو ہندو کو دیکھ کر ہو سکتی ہے، لیکن سب کے معلوم کرنے پر کوئی معقول وجہ خدا جانے کیوں نہیں نکلتی، اور اگر نکلتی بھی ہے تو وہ ایک کے لیے تو معقول ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے نامعقول۔ وہ بڑا تنہائی پسند تھا۔ باراتوں کو دیکھ کر برابر والی گلی میں گھس کر راستہ کاٹ دیا کرتا۔ رکابی سے نگاہیں ہٹا کر اس نے کٹورے میں جھانکا۔ مانو کو حیرت ہوئی کہ گھوڑا اب غائب ہو چکا تھا اور وہاں صرف مینا رہ گئی تھی۔ مانو کو پرندے اچھے لگتے تھے۔ اس کی ماں بچپن میں اکثر مانو کو دودھ نہیں پینے پر جھوٹ موٹ منڈیر پر بیٹھے کسی فرضی کوے کو بلایا کرتی تھی۔ آؤ کوے، مانو کا دودھ پی جاؤ۔ کوے کو دی جانے والی دعوت پر مانو جلدی سے اپنی نگاہیں منڈیر پر ڈال دیتا۔ اسے پورا یقین تھا کہ کوا دودھ پی کر گورا ہو جائے گا اور کالا بالکل نہ رہے گا، کیونکہ ماں کو اکثر وہ یہ بھی کہتے سنا تھا کہ جو بچے دودھ پیتے ہیں وہ خوب گورے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر گورے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا کہ اس کا دودھ کوے نے نہیں پیا ہے۔ یقین اگر نہ ٹوٹے تو خوشی بھی ہوتی ہے اور آسودگی کا احساس بھی، مگر مانو کو حیرت تھی کہ اس کے کٹورے کا گھوڑا آخر کہاں غائب ہو گیا، کب اور کیسے چیزیں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات مانو کے لیے ہمیشہ ایک الجھن کھڑی کر دیتی۔ وہ اپنے آس پاس ہنستے بولتے کھاتے پیتے خوش گپیاں کرتے لوگوں سے پوچھنا چاہتا، مگر اسے پتہ لگتا کہ ان لوگوں کی کبھی کوئی چیز غائب ہی نہیں ہوئی۔ تب مانو نے اپنے ایسے یقینوں کو جو ٹوٹ جایا کرتی تھی گنتی کرنے کے لیے ہمیشہ انہیں ایک نوٹ بک میں نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ کٹورے کی مینا کے دیکھنے کے بھولے سے انداز نے جب مانو کو اس کی طرف متوجہ کر لیا تو مینا نے اس کا نام لے کر پکارا، مانو۔ مانو اس کی زبان سے اپنا نام سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ چلایا، مینا باہر آؤ۔ پھر وہ بار بار مینا باہر آؤ، مینا باہر آؤ رٹ لگانے لگا۔ ناشتے کے میز پر پاس بیٹھی اس کی بہن جو اس سے 2 سال بڑی تھی اور اپنے سسرال سے باپ کی بیماری کے سبب ان دنوں آئی ہوئی تھی، مانو کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے دیکھا کہ مینا کو باہر لانے کے لیے وہ کٹورے کا دلیا رکابی میں اڈیل رہا ہے، لیکن بکھر گیا، مگر مینا کا تب بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ مانو اداس ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ مینا باہر آ جائے گی، لیکن اس کے نہیں آنے پر مانو نے اپنی ٹوٹی نوٹ بک کھولی اور
उस टूटे हुए यकीन को भी अपने फहरिस्त में जोड़ लिया। लेकिन मानू के घर वालों पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। जब मानू का मेडिकल चेकअप हुआ तो जहनी मरीज़ों के माहिरीन काफ़ी दिनों तक उसे एक से दूसरे के जानिब उछालते रहे। मानू के देखने का अंदाज़ कभी कभी अक्सर बदल जाता। दोनों हाथों के 5 उंगलियों को आपस में फंसाकर वो बार बार जकड़ता और किसी कलदार खिलौने की तरह अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता। उस वक्त उसकी आंखें चमक छत को तकती होती, होठों में बेहंगम सी जुनबिश होती जिससे चेहरा बदरू हो जाया करता। कुछ देर बाद बेरब्त जुमले, होठों के किनारे से बहने वाला मुंह का लाब वगैरह सब गायब हो जाया करता। उसकी जगह शेव किया हुआ चिकना चमकदार और तवाना चेहरा उभर आता। आंखों में जहानत की चमक वापस आ जाती और वो जहनी इमराज के माहिरीन से ऐसी बातें करता और ऐसे मौज़ूआत पर बातें करता कि उनके होश उड़ जाते। मानू को कभी अपनी बीमारी का गुजरा हुआ ज़माना याद भी ना रहता और वो अपने कमरे की इकलौती खिड़की के सामने चुपचाप साफ़ सुथरे कपड़े पहने बैठ जाता। सामने की 6 मंजिला इमारत के कमरों के खिड़कियों के उस पार साड़ियाँ, दुपट्टे और आते जाते जिस्मों की झलक देखा करता। उन मनाजिर के सारे रंग उसे अच्छे लगते थे। आखिर को मानू को उसके बाप ने मुंबई ले जाने और वहाँ के एक माहिर को जिसके बड़े चर्चे थे दिखाने का फ़ैसला किया। उन दिनों मानू की कैफियत पुरानी दौरों से मख्तलिफ थी। उनकी आंखें, चेहरा, हाथों की हरकत और मुस्कुराहट वगैरह सभी ठीक ठाक था, लेकिन उस पर एक अजीब सी जज्ब वाली कैफियत तारी हो गई थी और वो अक्सर कहता कि उसे अब बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। मगर हैरत की बात ये थी कि वो रंगों की शनाख्त भी ऐसी गलतियाँ करने लगा था कि बच्चे भी नहीं करते। एक दिन माँ के धानी दुपट्टे को उसने नीला दुपट्टा बताया था। बहन से उससे इस बात पर नाखुश हुआ कि वो नीले जम्पर पर काली शलवार क्यों पहनी है जबकि शलवार सफ़ेद थी। बहन ने उसे यकीन दिलाया, ना चाहा कि उसकी शलवार काली नहीं सफ़ेद है। मगर मानू को बहन की खुली धांधली पर ना तो गुस्सा आया और ना तरस, क्योंकि उसे यकीन था कि शलवार सफ़ेद नहीं काली थी। मुंबई में मानू की बहन की खाती पीती ससुराल थी। माहिर इमराज के बारे में उन लोगों ने मानू के वालिद को बताया कि डॉक्टर फितरतन एक लालची और लत के हद तक रेस का खिलाड़ी है। उसे कड़कड़ाते नोट को ताश की गड्डी की तरह फड़फड़ाने का जुनून है। शराब और घोड़ दौड़ के शौक़ ने उसे तबाह कर रखा है। जब उस माहिर से मानू को मिलवाया गया तो मानू डॉक्टर के मेज़ के सामने वाली कुर्सी पर बैठे ही नहीं, वो क्लैंक के उस बेतरतीब और मनहूस से कमरे के फर्श पर डॉक्टर को नज़रअंदाज करके चहलकदमी करने लगा और फ्रेम में लगी और दीवार पर नंगी असनाद को गौर से देखते हुए कब्ल उसकी कि डॉक्टर उससे कुछ पूछे, उल्टा मानू उससे सवालात करने लगा। रेस खेलते हो? डॉक्टर मुस्कुराया और हाँ में जवाब दिया। मेरे ख्याल में इस बार भी गलती कर रहे हो। मानू की इस अचानक कही जाने वाली बात पर 2 पल खामोशी रही। फिर डॉक्टर का सवाल था, कैसी गलती? जवाब दिया गया, तुम अपने टूटे हुए यकीनों की गिनती में एक का और इजाफा करने जा रहे हो। मतलब? डॉक्टर ने आंखें फाड़े तो फिर सवाल हुआ। ब्लैक डायमंड पर दाव लगाने जा रहे हो ना? हाँ, लगा तो रहा हूँ। वो घोड़ा नहीं, नट्टू है। नेपोलियन थंडर पर लगाओ। अभी मानो ने जुमला पूरा किया था कि डॉक्टर की जवान और बला की खूबसूरत लड़की छोटे से कुत्ते को गोद में लिए अंदर आई और बाप के मेज़ की दराज में कुछ तलाश करने लगी। हेलो मानू बड़े अंदाज से लड़की से मुखातब हुआ। आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। लड़की ने मुस्कुराकर उसका कॉम्प्लीमेंट पर इजहार तशक्कुर किया ही था कि मानू ने आगाह किया, अपने बाप से कहिए कि मेरी बात माने और कल की रेस में नेपोलियन थंडर खेलें। डॉक्टर ने पता नहीं क्यों बात मान ली, मगर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब उसने अपनी दूरबीन में नेपोलियन थंडर को सबसे आगे पाया। डॉक्टर ने अगली रेस के घोड़े के बारे में अपने मरीज़ को कुरेदना शुरू कर दिया तो मरीज़ उससे पूछा बैठा, ऐसा क्यों होता है कि कभी आपको वैसा ही और वही दिखाई देता है जैसा होता है? डॉक्टर के पास जब उसका कोई जवाब न मिला तो मानो ने उसे अगली रेस का फातह घोड़ा बता दिया। उस शाम को डॉक्टर मुआ अपनी बेटी के मानो के लिए कीमती तोहफ़े के साथ उसके घर आया। डॉक्टर की लड़की उसे रिझाने वाली अदाओं के साथ बराबर देखती रही। दूसरे दिन की शाम डॉक्टर की खूबसूरत लड़की मानो को लेकर ओबेरॉय के लॉन में बैठी थी और मेज़ पर
बियर की झाग उड़ाते कट ग्लास वाले मग रखे थे। फिर तो ये हुआ कि रात का खाना मानू अपने बहन के घर पर नहीं बल्कि उस खूबसूरत लड़की के मुंतखब किए हुए किसी होटल में खाता, जिसका भारी बिल वो लड़की अदा करती। मानू को बड़ी खुशी इस बात की थी कि जितनी बार भी उसने डॉक्टर की लड़की के साथ बियर पी, मानू को बियर का रंग सुनहरा ही दिखाई दिया। मगर एक दिन कदरे उदास लहजे में उस लड़की से, जिसे अब वो प्यार से मैना पुकारने लगा था, उसने सवाल किया, ऐसा हमेशा ही क्यों नहीं होता कि बियर का रंग सुनहरा ही रखे? मैना जवाब में मुस्कुरा दी थी। वो भी मुस्कुराया था। कितना अच्छा मौसम है ये, उसने कहा था। जो कुछ जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है। बियर वाकई सिर्फ सुनहरी है। मगर मैना का दिल कहीं और लगा था। फिश दूध क्रीम का एक टुकड़ा कांटे से उठाकर मुंह में रखते हुए कह दिया, मानू डियर, कोई घोड़ा मुझे भी बताओ ना। घोड़े तो तुम्हारी राह देख रहे हैं, वो आहिस्ता से बोला था। जिस पर दाव लगाओगी वही जीतेगा। मगर जब लड़की ने उसका हाथ चूमा तो उसने एक घोड़े का नाम बताते हुए कहा, शार्क। बाद में जब मैना ने अपने बिस्तर में रेस की अगली दौड़ों में शार्क का नाम तलाश किया तो वो मौजूद था। लड़की ने वो घोड़ा खेला और माला माल हो गई। उसके दूसरे दिन मैना ने बाप को आगाह कर दिया कि उसका घोड़ा उसे मिल गया है और अब वो अपना इस्तबल खुद बनाएगी। मैना को मानू से वालिहाना इश्क हो चुका था, क्योंकि वो अब कई घोड़े जीत चुकी थी। लेकिन मानू बड़ी उलझन में था। हुस्न, जवानी, हज़ारों रंगों में बिखरी हुई ज़िंदगी और उसके सरशारी उसके आसपास रक्कासा थीं। एक मैना भी उसके पास थी, जो कभी दलिये के कटोरे से बाहर न निकली थी। मगर अब वो जिस कदर दौड़ में जीतने वाली घोड़ों के नाम याद करता तो उसे घोड़ों की जगह गधे नजर आते, जिनका ना कोई नंबर था और ना नाम। लेकिन जब एक दिन मानू को बियर का बिल खुद अदा करना पड़ा तो उसको पता चला कि मैना को उस ख्याल से मतली हो रही थी कि बियर का रंग कुछ बदल गया है। पता नहीं क्यों वो सुनहरा नहीं दिखाई दे रहा। तब उसने मैना से पूछा, मैना डियर, ये बताओ, ये ज़िंदगी क्या है? घोड़े पर लगाया गया एक दाव। मैना अदा से चहक कर बोली थी। मैना का डॉक्टर बाप कई बार जब घोड़े पूछने पर भी मानू को खाली दीवार तकते हुए देखता रहा तो मानू के मर्ज से मायूस हो गया। उन्हें दिनों अपने दलिया के कटोरे में एक बार फिर मानू को घोड़े की पीठ पर एक मैना बैठी दिखाई दी तो मानू उससे पूछ बैठा, तुम ऐसा करो मैना कि मुझे कोई घोड़ा बताओ। घोड़ा नहीं, घोड़ी, मैना चहक कर बोली, और उसका नाम है मैना। मैना पर लगाओ। मगर रेस की किताब में मैना नाम की कोई घोड़ी न थी। मानू ने सोचा, मैना कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। वो उसको रेस कोर्स के मैदानों में, होटल के लॉनों में तलाश करता रहा, मगर वो मैना तो शायद किसी के कटोरे के दलिये में जाकर बैठ गई थी। मानू मुंबई से वापस आ गया है, अपने कमरे लिए इकलौती खिड़की पर बैठा है। पाही मेज़ पर उसका दूध भरा गिलास भी धरा है। खिड़की के सामने किसी फ्लैट के अंदर उसे मैना जैसी कोई लड़की चलती फिरती आती जाती कहीं नज़र आ जाती है। वो मुंडेर से किसी कौवे को उतरते देखता है जो उसके गिलास का सारा दूध पीकर गोरा हो जाता है। मगर अब मानू के दोनों हाथों की पांचों उंगलियां एक दूसरे से जकड़ी हुई हैं। होठों के कोनों से राल बह रहे हैं। आंखें इधर उधर घूम कर छत से चिपक रही हैं। पाजामे का एक पायंचा फट चुका है। दूसरे कमरे में मानू का बाप दिल ही दिल में सिसकियाँ सी ले रहा है। मानू के दोनों जानुओं पर उसकी नोटबुक खुली रखी थी। वो उसमें कुछ गुन रहा था और उलझ रहा था। आखिर को वो चिल्लाया, अब्बा अब्बा, मुझे बताओ ना, घोड़े क्यों हार जाते हैं? कौवे दूध क्यों पी जाते हैं? बाप नाश्ते के मेज़ पर बैठा कटोरे में दलिया खा रहा था। बाप को लगा कि दलिये में पड़े दूध का रंग काला है। वो घबराकर बीवी से दूध की शिकायत करने को उठा, मगर ये सोचकर बेटे की आवाज़ की तरफ चल पड़ा कि बीवी भला क्यों मानेगी कि दूध का रंग काला है। बाप खिड़की के करीब पहुंचा और धीरे से बेटे के सर पर शफकत का हाथ फेरा और अंदर के दर्द को संभाला। फिर भी उसके दिल से हुक सी उठी जो कह रही थी, जो कुछ जैसा होता है वो हमेशा वैसा ही कहाँ दिखाई देता है। तब तक फिर एक बार मानू अपने नोटबुक पर झुका। वो अपने टूटे हुए यकीनों का शुमार कर रहा था, मगर बार बार गिनती भूल जाता। आखिर को घबरा कर उसने नोटबुक को बुरी तरह नोच फाड़ कर फेंक दिया। ये क्या किया बेटे? बाप धीरे से बोला। मानू 2 पल बाप को देखता रहा, फिर उसकी आंखें भीग गईं। वो बुदबुदाया,
गिनती कर रहा था अब्बा, मगर ये तो बेशुमार हैं। फिर मानू आंखों में 2 आंसू लिए अपने पागलपन पर देर तक हंसता रहा।